So the front end cannot directly communicate to back end because front end is written in language called C# or VB.NET. So C# and VB.NET does not support multiple SQL queries. So if one man knows Hindi, one man knows English, how they can communicate? Because we use here in backend, you can choose any backend, doesn't matter. We have the language called SQL query. So SQL query we use in backend and use in language called C#. C# is a language, SQL query is a language. SQL query is a language. So how two different languages can communicate? That's why we have taken in between edu.net. So what I can do, I have some queries about database. I can pass to edu.net classes and they can give it to what? Table of database. So here I have the library system.data.dll and here I have several classes. So why do we learn edu.net? Several things comes into mind at runtime for giving an interview or at giving an interview. The problem is there. In this room, in that interview room, morning till evening, you will have approx 100 students will go for interview and will go for interview. And result maximum one or two. So think logically, it's like in SL Technologies, in Saturday, there was a vacancy in SL Technologies and Tarun Garg says to me, now we have morning till evening. It was open interview, it was walk-in interview. So we had approx 600 students in a 600 plus in a day, and they have taken only 11 or 12. So think logically, how much today interview is tough? It's not tough. We are searching the right person in an interview. Everybody knows edu.net, C#, ASP.NET, OOPS and database. My student Anurag Singh was in Infosys. He was rejected from the Infosys, from the SL Technologies. So man can reject any day, any time, any point of time. So your delivery, your pronunciation, your knowledge, it should be synchronized in one packet so that you can go and get an offer letter. So everybody knows edu.net, but why only one guy is getting a job? What's the reason behind this? So if you go in that interview room, you think there are not a single person who knows better edu.net. Everybody knows. So how they can differentiate to get whom? So you have to synchronize, you have to assemble in such a way that every word matters in an interview. I said there are several causes for learning edu.net. First cause is I learned .NET or Java. These two are for developing the front ends. Front end can be your console, it can be your Windows, it can be your web, hardly matter. Man knows Win console, they can convert into what Windows. Man knows Windows, they can convert into what web. It is just fun, it takes maximum 10 minutes to go for converting. Take a program of console, wrap into button click event or any events. You can go for making it fun. So C# is a language, and in database, SQL query is a language. So how these two different languages can communicate? So by using C# we can only make a front end. But my front end cannot go for inserting a data to back end, because
These are two different domains, totally non-related. C# can make up programs, can make application, but within the application we cannot have a database connectivity because there is a limitation of C#. They cannot go beyond to other applications. They cannot go to other applications to communicate. So we use in between .NET libraries. It has several classes. So with the help of those classes, I am supposed to interact with the working backend. Knowledge to सबके पास है. Delivery should be perfect. तो वो छोटा बच्चा बैठा हुआ सिस्टम में, इतना इजी नहीं आज सिस्टम इम्प्लीमेंट, सबके पास नॉलेज है. So you have to have a good way of pronunciation. So now I have taken here SQL connection. We have done everything right now. We have done all the practices. We have taken SQL command. We have taken SQL data. So far I have used 3 classes for the complete interaction of two database. By connection, we can have the physical connection with the database backend, and you can write several types of queries by the SQL command, because SQL command supports both the SQL as well as TSQL. Insert into or update or delete is called TSQL. If you want to use TSQL, you go for execute non-query. Am I right? करा दिया ना? You can go for execute non-query. You want to go for retrieval of data or searching of data, go with execute reader. And returns to what? Data reader. But you want to go only SQL, you want to go TSQL commands, don't go to data reader. But you want to go for searching of data or retrieval of data, go with the what? Data reader. And this class is having a function called read. And we have seen in last class to last class, this class is having a 3 important function. We have discussed execute non-query, execute reader, or execute a scalar. You want to go for single row as a calculated columns, scalar. और आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है बालक. आपके ऐसे रास्ते पे लाखों बच्चे घूम रहे हैं, and all are well educated. उसके बाद ही बच्चों की जॉब नहीं लग रही. ये नहीं कि मार्केट में जॉब कम है. आप मेरे सेंटर से हर दिन सुनते हुए बच्चे की जॉब लगती है. Reason is that those who is presenting himself is getting a knowledge. Those who is reading a books, writing a programs, is not getting a job. Because he has to cross all the parameters for getting a job. Am I right? The pronunciation, your vocabularies, your dictionary, your body language, plus knowledge, the presentation of knowledge, the depth knowledge. If you're wrapped in a single combo box, then you can have a job. Today's scenario. So now here, I have seen 3 functions: execute non-query, comma execute reader, comma execute scalar. These 3 are member functions of SQL command class we invoke by the object. And this is the function returns integer as the number of rows affected, is returned SQL to the SQL data reader. I returned as an object. You can convert later on into what? Int, float, char, double. It's called boxing and unboxing. So, chalo. So now, we just make any one program, even say in an interview. Just make any one program, or you can communicate with the database. And now question comes second point, the attitude, how you can communicate to backend.
He will say now, once you have satisfied कि what's the mean of, बेटा आप लेट हो गए हो, लेट हो गए, ये बोलूंगा नहीं. So once I have satisfied कि why do we go for radio.net, simple सा English, this is a C# or this is a SQL query. These two are two different languages. Excuse me. So C# and a SQL query cannot communicate to each other. Why? So how I can go for fetching the data, the columns of the table. So we have to have an intermediate process between C# and SQL server. You are from where? Kerala. Andhra Pradesh. Which language you use there? Telugu. Not Tamil. Tamil in Chennai. Tamil Nadu. So I don't use language. I can communicate to you. So I required one person as a mediator in between you and me. आप कैसे कन्विंस कर रहे हैं उसको? अब देखो ना, अभिषेक गुप्ता ने क्या कमाल करा है. मतलब 390 बंदे गए थे फेयर पोर्टल में, हम आप 2 का सिलेक्शन. नॉलेज सबके पास है, डिलीवरी ऑफ नॉलेज. सो आंध्र प्रदेश गई संदीप करण फ्रॉम बिहार. हाउ वी कैन कम्युनिकेट? आई यूज लैंग्वेज कॉल हिंदी एंड इंग्लिश. ही यूज तेलुगु लैंग्वेज. So in between we have to have an intermediate process. We need to have an intermediate process. I can send my request to that person, not that person, intermediate person. They can forward to what? That person. So that intermediate process is called ADO. It provides a library. Don't say it's a library. MS Office is not basically word. It is having a word. ADO.net is not basically library. It provides a library. Then we have several classes. Using those, I am supposed to interact with the what? Database. So, उसने कहा अंकल ठीक है मुझे प्रोग्राम बना दिया. अब आ गया पॉइंट. अब प्रोग्राम का मतलब अंकल ये होता है, if I go to our system, it's a very good company, fantastic. If you go to TCS, if you go to Capgemini, you go to Noida NCR based companies. Company has standard and they are searching at the standard and the discipline in you for that company. He will say, write any one program to communicate with the backend. It's just a test to know about you. Are you compliant to me or not? You just make a tea for me. I want to see how much your hand is hygienic or not. Tea is bahana to making for you. I would like to check after making a tea, what is kitchen status? Before starting and making a tea, what is kitchen status? How much are hygienic for making a tea? So I am searching a compatibility. Program is bahana for me to check your test. Write any program Sandeep for database management. Chalo, I write one program for database connectivity, and after that he says you are rejected. Doesn't mean I am not basically good. I am not basically fit for that company. So be prepared according to company. Now, मैं कुछ इसको लिखना मत, मैं करा चुका हूँ सबने कर रखा है. क्लास के बाद आप बैठे इसको इंटरजेक्ट करना, ठीक है? सब कुछ करा देगा. उसने एक सिस्टम दे दिया, डेटाबेस रेडी कर दिया, टेबल रेडी कर दिया. कर तुमको जैसे लिखना लिखो, विंडोज से लिखो, वेब से लिखो, कंसोल से लिखो.
Time is 30 minutes for you. Write any one program. उसको प्रोग्राम के आउटपुट से भी मतलब नहीं, वो प्रोग्राम के अप्रोच को देखना चाहता है. मैंने बस ये ले लिया स्कूल डेटा. Test is a default constructor. Con is equal to new. Public where is a CMD is equal to, इसको मत लिखो यार, करा चुके हैं प्लीज. सेलेक्ट स्टार्ट, हमने अंकल ये कर दिया. एंड CMD एग्जीक्यूट हो और दे दिया किसको. अब RD के पास टेबल की बेस एड्रेस आ गई. RD के पास टेबल की बेस एड्रेस आ गई. कॉल बाय रेफरेंस एंड RD डॉट रीड करा. जैसे रीड करा स्टार्ट PTR हो गया. स्टार्ट PTR हो गया और फर्स्ट एलिमेंट आएगा. एक और रीड लगा दिया. अब 2 रिकॉर्ड नहीं आएगा इनको. अब नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा. स्टार्ट PTR +1 हो गया. एक रीड एक रिकॉर्ड, 2 रीड नेक्स्ट रिकॉर्ड. अब एक नहीं आएगा, 2 आएगा. कर्सर 2 बार मूव कर चुका है. स्टार्ट PTR और नीचे क्या स्टार्ट PTR +1. अब कॉलर वो नहीं आएगा. अब कहाँ पे आ चुका सेकंड फ्लोर पे. अब फर्स्ट फ्लोर नहीं आएगा. फर्स्ट फ्लोर को लाना है तो वापस चलो. व्हाट इज वापस? एक स्टेप नीचे करो. ठीक है अंकल. यहाँ पे क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट है, न्यू बॉडी. और जान के हमने ये काम सेम भी काम कहाँ से कर लिया बोलो, ASP.NET से. हमने खाना बना लिया और उसको प्लेट में निकाल दिया. मेरे प्लेट क्या बोलो, वेब पेज डिसगस्टिंग एंड बोरिंग चीज. और भगवान की दया से मुझे इस पेज की आर्किटेक्चर आती है. मुझे पेज पे काम करना बोरिंग लगता है, बट बच्चों के लिए जरूरी है. ये भी कह लेते बोरिंग बोले, बट आर्किटेक्चर कभी बुरा नहीं होता, आर्किटेक्चर भी अच्छा होता है. स्टार्टिंग के लिए जरूरी है वेब पेज आना, बट आगे के लिए एनहांस करो, एनहांसमेंट करो, WCF करो, वेब सर्विस करो. एक बार टूल बॉक्स हो गया. आपको नहीं कहते लड़का बड़ा अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज का है, उसको मैंने खड़ा किया था, उसकी जॉब लग चुकी है कैंपस से, उसका रिजेक्शन हो गया कहीं और से. मेरे कॉलेज का लड़का ऐसी गया, लंबा सा लड़का, नाम नहीं पता.
फ्रेशर बच्चा है 12 का, WCF पोस्टिंग नहीं हुआ सिलेक्शन। उसके एक ऑपरेटर उसके पास है ही, ऑफ कैंपस गया था। 12 से पूछ रहे हैं WCF वेब सर्विस लिंक की सिल्वर लाइट, अभी वेब पेज है। अभी सिम का बोलो कहाँ से हो रहा है? सिम काम कहाँ से हो रहा है? सिल्वर लाइट से हो रहा है सेम काम। अंकल ये वाला ये सेम काम। अभी सब मार्केट में अंकल कहीं ASP.NET नहीं, सेम काम। मतलब समझ लो कि नोटपैड मेरे पास है, वर्ड मेरे पास है, इतना डिफरेंस है। मैं लेटर कहाँ लिखूँ? नोटपैड में लिखूँ या वर्ड में लिखूँ? सवाल ही होता है मैं कहाँ लिखूँ, नोट करेंगे। अब सारा काम यहाँ से हो रहा है। ये देखो, ये भी इसके भी 2 पार्ट हैं, XAML और CS। यहाँ देखो, यह भी क्या है? ASPX और तो आज मैं क्यों जाऊँ उसके ऊपर? लड़का पढ़ने में जब बराबर उसको खड़ा करता हूँ, लास्ट में बैठता है वो, लंबा सा लड़का, चश्मा लगाता है। नाम क्या है? हमारे कॉलेज का मुझे पता है। देखो लड़का है, परसों आया मूड ऑफ करके, सर नहीं आया तो WCF में सिल्वर लाइट का नहीं हुआ। टूल बॉक्स, अब देखो कल यहाँ भी बटन और यहाँ भी बटन। इस बटन के ऊपर आप इतनी कलाबाजी कर सकते हो, मत पूछो कितना कलाबाजी। और देखो इसका एक चीज देखना, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देखो क्या बात, जहां ले जाओ इसको, फ्री मूवमेंट एंगल। और यही काम करने के लिए दिमाग खराब हो जाता है। बोलो कहाँ पे? ASP.NET। काफी अच्छा है पॉइंट, नाम बोल रहे हैं दुष्यंत, क्या नाम उसका? इतना अच्छा लगता है, विंडो फॉर्म पे काम करता है। तुम क्यों जाए ASP.NET? DS की डिमांड चल रही है मार्केट। यहाँ क्लिक करो, आपको क्लिक, यहाँ भी क्लिक इवेंट आएगा, सब कुछ है, कुछ भी ले लो, सब कुछ है। 4.5 में अंकल ASP.NET बंद है, ASP.NEट है ही नहीं 4.5 में। Come back to point. आपकी जो बैच है शाम वाली, अब उसमें वेब पेज नहीं खुलेगा, वाली क्या खुलेगा? सिल्वर लाइट। 5-6 दिन काम करोगे आराम से। हमने नाम दे दिया पॉपुलर। हमने 2 प्रोग्राम बना के छोड़ दिया उसके सिस्टम पे, एक कंसोल से, एक बोलो कहां से। अब एक रिकॉर्ड दिखाने हैं, तो हमने यहाँ पे एक ले लिया, यहाँ पे टूल बॉक्स से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। ठीक है।
ये था, इसे मैंने कंपाइल करा और डेटाबेस भी खोल लो। लेकिन हमका सेकेंड रिकॉर्ड आएगा, फर्स्ट रिकॉर्ड नहीं है। कर्सर यहाँ आ गया, मैंने पहला गाना छोड़ दिया। और यहाँ पे लिखा PS अब देखो कौन सा रिकॉर्ड, ये वाला है ना, 2 और 3। प्रोग्राम खोला, एक और रीड लगा दी। अब क्या हो गया, स्टार्ट PTR+2 हो गया। तो पॉइंटर का मूवमेंट है बैकग्राउंड। थर्ड पे आ गया। अब चलो पता है, एक रीड एक बार में एक रो को फेच करके लाता है। अब अंकल इतना लफड़ा मत करो, हमने तीनों को निकाल दिया, एक लूप लगा दिया। बोलो कौन? मुझे पूरी रिकॉर्ड चाहिए, पूरी रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड। क्या लगा? तो अपने कॉन्सेप्ट से खेल रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट से खेल रहे हैं। इसका शेप कहाँ देंगे? बोलो वेब पेज के ऊपर। हम खाना बनाने से खेल रहे हैं। अब खाना बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, लगा दो प्लेट के अंदर, वेब पेज है। तो while RD डॉट ये करा और ये करा। अब उस टेबल के सारे जितने रोज हैं, 2 कॉलम के, 0 क्या है पहला कॉलम, 1 क्या है सेकंड कॉलम, दोनों कॉलम आ गए सारे। इसको सेव कर और ये हाँ, एक से लेकर उसने कहा तुमने कंसोल पे दिखाया है, तो मुझे ये सारे नाम जो है दीपा दीपू जितने ड्रामे हैं सेकंड कॉलम, तुम ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में दिखा। उसको बुलाना बच्ची को, बुलाना बच्ची को। बेटा भी है ना फ्री? वे फ्री है, हम जाना नहीं तेरे को ना। कहाँ से? तो कितने बजे जाएगी? अभी से जाएगी? आ जाएगा। मेरे पुराने बच्चे हैं सेंट्रल। उसने कहा आप मेरे को ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में दिखाओ, जो करवाना करवा लो यार। मैंने इसके लिए अब देखो ना अंकल, अब देखो ना, अगर एक रो दिखाना होता, एक टेक्स्ट बॉक्स पे दिखा। हमने कितने बच्चों को देखा है सेंटर में, वो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लूप लगा देते हैं। अरे यार तुम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लूप क्यों लगा रहे हो? टेक्स्ट बॉक्स एक बार में ही डेटा दिखा सकते। आप लूप कहाँ पे लगाओ? ड्रॉप डाउन के ऊपर। अब मैंने इस पर क्लिक करा, कुछ नहीं है, जो हमने बनाया था या इसको दिखा देना है, बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। बस अंतर है कि हमने क्लास का नाम टेस्ट लिया था, ये क्लास का नाम बोलो कौन है? डिफॉल्ट। और हर पेज के 2 पहलू हैं, एक वेब पेज, एक कोडिंग। ये बन तो गई वेब पेज, ये क्या है बोलो? अब यहाँ पे आए, इसको कंट्रोल C करा और कंट्रोल V कर दिया, ये बन गई कंस्ट्रक्टर। तो हमने लगाया ना, मैंने मूव किया ASP.NET में, यहाँ लगा दिया पब्लिक, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। और
और अपने ही प्रोग्राम में यहाँ पे इसको निकाला तीनों को, सेल्फ सपोर्ट कर रहा है। टेक्निकल सपोर्ट इसी को बोलते हैं, टेक्निकल, अपने प्रोग्राम को ठीक कर रहा है। और कंट्रोल सी करा, और कंट्रोल क्लास में डिक्लेयर हो गया, ऊपर क्या ऐड कर लिया, यूजिंग अ सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल को फोन नंबर दे दो, इनको बोलो आज यानी कि कल आने, सर तो तभी ठीक नहीं, कल आने 11 बजे, ठीक है। इतनी बात करिए, आप करना, ठीक है। अब अंकल यहां से क्या करा, इसको उठाया और कंट्रोल सी करा और कंट्रोल V। कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो कहाँ लगा मुझे, मैंने सीखा ASP.NET, लगा ही नहीं मुझे, बस क्लास का नाम पे टेस्ट था। या बोलो कौन है ये मेरी कंस्ट्रक्टर हो, वो हमने कोड कहाँ लिखा था सारा, बोलो कहाँ लिखा था, फंक्शन में। अरे यार कंसोल में कहाँ लिखा था, बोलो फंक्शन के अंदर। इसको अंकल देखिए, कंट्रोल सी करा, काम करने का तरीका देखो, कंट्रोल सी करा, कॉपी करा और कहाँ डाल दिया, बटन के कहाँ डाल दिया, बोलो क्लिक। अब कूल होके देखो, क्लास के ऊपर ये लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टर में ये लिखा हुआ है, और जो हमने फंक्शन बनाई थी उसे कोड को कहाँ डाल दिया, बोलो। अब यहाँ पे कंसोल नहीं होगा, ये कंसोल नहीं होगा, इसको निकाल, क्या लगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स। हमारा सिंटैक्स हमें याद नहीं है कि ड्रॉप डाउन में कैसे दिखाना है। अंकल एक साइट है, आप उसे लाइफ टाइम अपने साथ रखना, उसका नाम मैकोनस्टेट है, मैकोनस्टेट। उस साइट पे सारे कंट्रोल के प्रोग्राम बने, सारे कंट्रोल के प्रोग्राम। अब सिंपल लिखना है यहाँ पे, अब मान लो जैसे मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि ड्रॉप डाउन पे कैसे लिखना है। नाम तो पता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स 1 था, डॉट, अब क्या लिखूं, याद नहीं आ रहा है। अब मैं पूछूं किसी से, कैसे पूछूं? नए नए ड्रामे आए, नए नए कंट्रोल, नए नए ड्रामे, हर साल नए नए कंट्रोल चले आते हैं उठ के मार्केट, तो कोई टेंशन नहीं है हमारे लिए, अभी आ जाएगा। तो ड्रॉप डाउन इस बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड। अब कौन से कॉलम से बाइंड करनी है, RD ऑफ 1। अब मेरे पास सेकेंड कॉलम पूरी कहाँ जाएगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। ऐसे शाम तक बैठ के सारे कंट्रोल की प्रैक्टिस हो, हमें टेंशन नहीं है, हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। अभी आ जाएगा। और डॉट क्या कर दिया, वो HT में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ये तुम्हारी वेब पेज हो गई, इस पे क्लिक करा, वैसे ही जितने कंट्रोल हैं हर की प्रैक्टिस कर। ठीक है अंकल, ये कहानी होगी इसकी। अब इसको जल्दी फटाफट
So that query is what? Query is compiled. इसको लिख कर कंट्रोल C कर लो और कहाँ पे डालो? डेटाबेस में कॉपी कर दिया, अब क्या करेगा? F5 कर दिया, क्या हो गया? कंपाइल, the query is compiled. अब गलत करके देख लो गलत कर। अब यहां गलत करके देख लो, यहां गलत करके देख लो, चेक कर लो, कंपाइल हो। ये डिफरेंस तुमको बता। बेटा सोर्स कोड में एसक्यूएल क्वेरी लिखी हो, कंपाइल हो गया, तो वही कहाँ क्वेरी कहाँ लिखी बोलो? डेटाबेस में तो कंपाइल नहीं। ये डिफरेंस बताना है बच्चे। तो दिक्कत है अंकल, आया समझ मेरी बातें? अब इसको यहां से निकाल दो। आया समझ में? आया? अरे सिंपल मैथमेटिक्स है। हमने 1 किलो की चीनी एक पैकेट में कंपाइल करके, एक कस्टमर आया, भाई साहब 1 किलो का चीनी दो। अब इतना समय नहीं कि बैठ के तौलूंगा, ये करूंगा, मेरे को तो तौलने का समय है, उसके पास समय नहीं है। मुझे सर तौलने का चक्कर छोड़ो, आप मेरे को पैक वाला है तो दे दो। तो कुछ वो दुकान पे सामान को पहले से कंपाइल करके रखता है, और कुछ रन टाइम क्या करता है वो तौल कर। समझ गए? तो हमने कहाँ से रन होगा? ये सिंटैक्स गलत है। तो बेटे कंपाइल कब होगा? कंपाइल कब हो रहा है? रन टाइम में रन करना चाहिए, और रन टाइम में बोल क्या हो रहा है? कंपाइल हो रहा है। तूने ट्रेन की टिकट नहीं ली बेटे, नहीं ली टिकट। अब तू टिकट कब लेके बोलो? जब ट्रेन के समय। क्या तरीका है यार? सारा मजा तुमने खाया बजे चढ़ने का। अब बैठ के चिक करो टीटी के साथ। अब पहले से टिकट लेके रख लो ना यार, प्री कंपाइल। ट्रेन आई, बैठ गए, कंफर्टेबल जर्नी, कूल एटमोस्फेयर, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। कंपाइल करके रख दिया। मतलब आपके जैसे घर में गेस्ट आएगा, आपने पहले आटा गूंथ के रख लिया, और जब आएगा तो रोटी बना देगा। नलायक तू अभी आटा गूंथेगा इस वक्त, घंटा लगेगा। हमने पहले से कंपाइल करके रख दिया, समझ गए? रन टाइम में बनेगा, कंपाइल तो नहीं होगा। यहाँ क्या हो रहा है? रन टाइम में क्या हो रहा है? रन टाइम में क्या हो रहा है? रन टाइम में कंपाइल हो रहा है। देखो ना, गलती कर दिया कंपाइल। देखो ना आपके सामने, सिंपल देखो। यहाँ इसको एरर आनी चाहिए थी, एरर नहीं आई। और ये काम कहाँ पे लिखा बोलो? प्रोसीजर में एरर आ गया। अब ठीक कर दो। हो गया? अब कहाँ से कॉल कर लेंगे बोलो? अब देखो यहाँ पे, अब बेटे यहाँ पे आप क्वेरी नहीं लिखोगे, जो आपने बनाया था बोलो कौन? प्रोसीजर, उससे कॉल कर लो। नाम क्या है उसका? गेस्ट। और प्लस इस रिकॉर्ड अचीव हुआ।
क्वेरी क्या हो गया, बोलो क्वेरी हाइड हो गया। अब मान लो एक लड़का मान लो बाहर से भी क्लासरूम में मेरे आए, तो वो क्या समझेगा, सही पता नहीं क्या लिखा है। द क्वेरी इज इनकैप्सुलेटेड टू व्हाट, इसको यहाँ पे यूजर्स हो, प्रोग्रामर्स नहीं होगा, बोलो क्या हो एंड व्हाट। आपने बेटा जो क्वेरी लिखी है, आपने खाना पैक करके लंच बॉक्स में दे दिया यार। लंच बॉक्स से खाना कहाँ दिख रहा है कदे, और दिख रहा है लंच बॉक्स और खाना तो नहीं दिख रहा है, अंदर से खाना क्या पड़ा हुआ है। अब देखो ये कर दिया, तो आज के बाद आप कभी भी SQL कमांड क्लास से क्वेरी नहीं लिखें, आप बना लें प्रोसीजर और क्या करें, उसे कॉल करें। अब चला के देख लो इसको, करना पड़ेगा कि चल रहा है। क्या जब इंसर्ट वाले करते हैं तो, और इनपुट वाले आउटपुट वाले, या फिर आया समझ में। अब ये प्रोग्राम बीटेक कोई भी ले जाए, हमें टेंशन में। एक तो ये जो लिखा हुआ है पता नहीं क्या लिखा भगवान जाने, इसके अंदर क्या लिखा है ये नहीं पता है। चलो जो भी लिखा ऑलरेडी बोलो क्या बोलो, पहले से कंपाइल, 1 किलो का डब्बा है, चल पहले से कंपाइल। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। ये था ये देख लो, और क्या लिखा वो भी देख लो। आप ये लिखना है, कुछ चेंजेस करोगे ना तो क्या लगाओगे, मॉनिटर लगाओगे।